Namaskar and welcome. You are watching Rising Bharat. I am Aviraj. As we all know, MSMEs are contributing 30% to our GDP and 45% to our exports. And some research suggests MSMEs could boost GDP contributions to 50% by 2025, driven by manufacturing and exports. With over 6.3 crores MSMEs, they employ over 110 million people, making them the second largest job provider after agriculture. But still, MSMEs are facing challenges in scaling, both financially and operationally. To address this issue, today we have a very special guest. Please help me to welcome Mr. Chandrasekhar Arya from IDBI Bank. Hello, sir. How are you? Hello. Fine. Thank you for having me. सर, अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो एमएसएमईज को किस तरह से अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? उसमें बैंक्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? बैंक से टेक्नोलॉजी की, जहां तक हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत जरूरी है अगर एमएसएमई को अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है. सी द काइंड ऑफ फिगर यू हैव टोल्ड दिस नाउ, दिस सिग्निफाइज दैट द एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, राइट, and they are one of the core engine of the Indian economy. They are contributing in employment generation, export promotion, industrialization, supply chain support to big industries. They are fostering, entrepreneurships, startup culture. If we want to realize the dream of 5 trillion economy or Viksit Bharat, the role of MSME not only important but critical. लेकिन अब उसके लिए जरूरी क्या है कि उनके challenges को भी हमको समझना बहुत जरूरी है. जी, एमएसएमई का उनके पास लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट रहता है, उनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिलता है, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन उनका स्लो है. अगर उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं. इसमें जी, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि जब जो आप भी कह रहे हैं कि बाय 2025 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एमएसएमईज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 30% से बढ़ के 50% तक हो जाएगा और इन एमएसएमईज से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है. लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी बोला जाता है कि एमएसएमईज इसलिए पीछे रह गए क्योंकि एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट इज लो. फॉर्मल क्रेडिट लेना एमएसएमईज के लिए अभी भी इतना टफ क्यों है जब फंडिंग की सबको जरूरत है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, तो फिर एक्सेस इतना लिमिटेड क्यों है? इसके जो मुझे तो लगता है 2 रीजन है बेसिकली. क्या ट्रेडिशनल जो फॉर्मल जो क्रेडिटर्स हैं इंडिया में, दैट इज स्पेशली बैंक्स, वो they are assessing their they are insisting on that the MSME unit should offer some kind of collateral to secure जो उनके पास नहीं हो, some property, some security they insist, जो उनके पास नहीं. दूसरा रीजन ये है कि जो असेसमेंट होता है बैंकों का, the credit requirement of the MSME unit, it is based on balance sheet और turnover. तो बैलेंस शीट और टर्नओवर के लिए कि some kind of formal accounting system they should maintain. अवेलेबल नहीं होता है छोटी यूनिट्स में कि वो लोग अकाउंटिंग सिस्टम को, फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं, which has these things has created some kind of barrier to access the formal credit. लेकिन अब because of government support, infrastructure, digital footprints, ये सब चेंज हो रहा है. बैंक्स भी अपना ट्रेडिशनल असेसमेंट से मूव कर नए मेथड को यूज कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इससे काफी कुछ चेंज आएगा. And what role are banks like IDBI playing to bridge this financing gap for MSMEs? देखो, केवल बैंक IDBI, not all the banks have now realized the true potential of these sectors. Because big sectors, big industries, there is lots of competition. They are too much demanding, right. And banks are also wanted to spread their risk. Instead of giving a big loan to one company, they wanted to give to number of units जिससे उनका risk diversified. So and apart from this MSME unit are providing huge potentials and opportunity to MSMEs. वहाँ उनके पास pricing की bargaining भी होती है. So all banks including IDBI Bank has restarted reorienting themselves to better product offering. Bank are now not insisting on collaterals and government का support ऐसा है कि वो बिना collateral के भी आप loans दे सकते हो. तो government गारंटी दे रही है, तो बैंकों ने अपने विदाउट कोलेटरल भी लोन दे रहे हैं. एंड देन दे हैव डेवलप्ड देयर ओन अल्टरनेट क्रेडिट असेसमेंट सिस्टम, कैश फ्लो बेस पर है, डिजिटल फुटप्रिंट है एमएसएमई के, उसको वो लिवरेज कर रहे हैं. उसके बेस पर बहुत सारे के प्रोडक्ट्स अब आ गए हैं. इसके अलावा फिनटेक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. यहाँ पर फिनटेक की वजह से बड़े बड़े
सॉल्यूशंस आ गए हैं, उसकी वजह से मतलब छोटा छोटा अमाउंट का भी लोन हो पा रहा है। देन गवर्नमेंट की फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट का स्कीम इतनी इतनी अच्छी है कि 10,000 से लेकर 100 करोड़ तक का एमएसएमई को लोन मिल सकता है। कौन सी स्कीम्स में आता है, लाइक मुद्रा लोन या मुद्रा लोन, अब जैसे मुद्रा लोन की बात करें, पहले हम 10 लाख तक ही गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और बैंक दे सकते थे, अभी उसको हमने 20 लाख तक कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने अभी एक सीजीटीएमई स्कीम थी जो जिसमें गारंटी कवर देते थे लोन के लिए विदाउट विदाउट, कोलेटरल? हाँ उसको अब 10 करोड़ कर दिया है। पहले 2 था, फिर 5 किया, अभी रिसेंट बजट में 10 करोड़ कर दिया है। देन ट्रेड प्लेटफॉर्म्स है जहां पर बिल डिस्काउंट होते हैं, वहां पर 500 करोड़ की लिमिट थी बड़े यूनिट के लिए, उसको 250 करोड़ कर दिया है। गवर्नमेंट ने समाधान पोर्टल लाया है जिसमें दे कैन रेज देयर ग्रीवेंसेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दे कैन रेज एंड सो दैट इट कैन बी रिड्यूस फास्टर। देन पीएम विश्वकर्मा योजना है जहां पर छोटे जो एस्पायरिंग इंटरप्रेन्योर हैं उनको 1 लाख तक का लोन मिलता है इंस्टेंटली, कोलेटरल फ्री, अगर उनका कंडक्ट सही रहता है तो उनको 2 लाख तक का फ्री कोलेटरल लोन मिल जाता है। देन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, एमएसएमई यूनिट जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट्स हैं, उनको मैंडेटरी कर दिया कि जितना भी प्रोक्योरमेंट करेंगे 25% उनको एमएसएमई से ही करना है। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, जहां पर अप टू 100 करोड़ की बैंक गारंटी गवर्नमेंट गारंटी देगी टू रेज लोन बाय द एमएसएमई। बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही है, एंड बैंक्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस टर्म। जो फाउंडर्स हैं और एमएसएमई के लाइक जो प्रमोटर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तो जैसे अभी हम लोगों ने सीजीटीएमएससी के बारे में बात की, तो बहुत अच्छी स्कीम है, लाइक बिना कोलेट्रल के वो लोग ऑफर करते हैं। बट सर बीच में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। लोग बोलते हैं कि सीजीटीएमएससी एक गारंटी दे देते हैं, बट जब वो लोग बैंक्स के पास जाते हैं तो लाइक वहां से थोड़ा सा उनको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस है जिनको वो लोग बेटर कर सकते हैं? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। अभी क्या है कि बैंक मोस्टली क्या करते हैं कि इनके कंडक्ट ऑफ देखते हैं जी कि इनका क्रेडिट हिस्ट्री कैसे। तो मेरा एक सजेशन होगा कि एमएसएमई यूनिट्स को, एंटरप्रेन्योर को ये इंश्योर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री सही रहे। क्रेडिट हिस्ट्री है तो अभी बहुत सारे एमएसएमई, सिंस आई एम फ्रॉम बैंक, आई कैन टेल यू एमएसएमई यूनिट्स आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव ऑल्सो। आजकल वो लोग प्राइस को लेकर बार्गेन भी कर पा रहे हैं। जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, जिनका कंडक्ट अच्छा है, उनको मल्टीपल बैंक्स आर रेडी टू गिव लोन्स, और वो लोग प्राइस बार्गेनिंग भी कर पा। तो एक ही सर्च और ट्रेंड पूरा चेंज हो रहा है। अब कोलेटरल बेस्ड लैंडिंग नहीं हो रही है। अब सीजीटीएमएसएमई पर आप देखो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सीजीटीएमएसए हैज इंक्रीज और नॉट, राइट, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अभी रफली जो मुझे आई एम नॉट श्योर, रफली मुझे लगता है 3 लाख करोड़ की बैंक सीजीटीएमएसएमई की गारंटी है। 3 लाख करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। एंड सर जो कि अभी हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सो जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो एमएसएमई हैं। सारे एमएसएमईज जो हैं वो स्टार्टअप्स नहीं हैं। अगर कोई स्टार्टअप है वो टेक्नोलॉजी वो लेवरेज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बट उसका जो रेवेन्यू है वो एक जो प्रॉपर एमएसएमई है उससे कम है। बट स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाती है, लेकिन एमएसएमई को जो है वो लाइक लोन मिलने में, फॉर्मल क्रेडिट मिलने में और फंडिंग मिलने में इतनी ज्यादा उसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ट्रेडिशनल जो लैंडर्स थे जी, स्पेशली बैंक्स, वो 2 चीजों पर बेस पे फंडिंग कर रहे थे। एक कोलेटरल मांगते थे जो वो लोग नहीं दे पाते, राइट। दूसरा वो उनका असेसमेंट करते थे उनके टर्नओवर पर, लास्ट ईयर का टर्नओवर। टर्नओवर का लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था कि कैसे पता लगे कि इनका टर्नओवर कितना है, क्योंकि वो लोग अकाउंटिंग नहीं मेंटेन करते थे, अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं प्रॉपरली, और करते ही नहीं है। लेकिन आज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आज जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास जिससे पता लग जाता है कि इनका कितना टर्नओवर, राइट, और उनसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वी कैन एक्सेस डायरेक्टली विद द कंसेंट ऑफ द एमएसएमई। सो अब वो चीजें चेंज हो रही हैं। अब उनको जरूरी नहीं है कि उनको एक टर्नओवर ही देखना है। हम जीएसटी के देखते हैं, उसमें उनका टर्नओवर पता लग जाता है, उसके बेस पे होता है, कैश फ्लो के बेस पे करते हैं। इसके अलावा जो मैंने बोला फिनटेक आ गए हैं, उनकी वजह से, और जो फिनटेक सॉल्यूशन दे रहे हैं उसकी वजह से नए नए लोन स्कीम, नई नई चीजें आ गई है, नए नए अपार्ट फ्रॉम बैंक लोन बहुत सारे आज छोटे छोटे लोन हो रहे हैं। आपको उन्हें चाहिए कि सैचेट टाइप के लोन हो रहे हैं, बाइट साइज लोन्स हो रहे हैं, इंस्टेंट हो रहे हैं। आपने सुना होगा बाइट नाउ पे लेटर,
और ये क्या है, इन चीजों की वजह से बैंक्स आर आल्सो फोर्स टू रीओरिएंट देमसेल्फ। तो उन्होंने भी अब चेंज, आप देखो बहुत सारे बैंक अभी सेल्फ जर्नी ले आए हैं अपने वेबसाइट पर। जी वहां जी। पर एमएसएमई जाएगा, यूनियन इंटरप्रेन्योर जाएगा, खुद अपने डेटा इनपुट करेगा और फंडिंग उसको मिल इंस्टेंट, अप टू सर्टेन अमाउंट इंस्टेंट लोन मिल रहा है विदाउट सिक्योरिटी। ओके, लाइक जो इनफॉर्मल क्रेडिट काइंड ऑफ लोन। हाँ, बस अभी क्या है कि उनको फॉर्मल में आना पड़ेगा, उनको यूआरसी रजिस्टर्ड करा लें तो उनके लिए बहुत इजी होगा। एंड सर, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और लाइक कि जिन्होंने अभी शुरू किया है, अगर उनके पास कोई कोलेटरल नहीं है, कोई लाइक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो उनके लिए क्या वे है, उनको कैसे पैसा मिल सकता है? देखिए, अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने रफली 20 करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की फॉर स्टार्टअप ओनली, कि उनको 20 करोड़ तक का लोन विदाउट कोलेटरल मिलेगा और गवर्नमेंट उसमें गारंटी देती है। सो उसको लाइक वो लोग लेवरेज कर सकते हैं। उसको लिवरेज कर सकते हैं, उसको बिल्कुल। लिवरेज कर सकते हैं। एंड सी बेस्ड ऑन दी ये क्या है कि क्रेडिट क्या है कि इफ द लेंडर गॉट कन्विंस कि हाँ यहाँ से कैश जनरेट होगा एंड दे आर कॉन्फिडेंट विद द एंटरप्रेन्योर, आजकल बहुत इजी हो गया फंडिंग में। हाँ, अभी भी मैं कह सकता हूँ कि देयर आर कंस्ट्रेंट्स एंड अवेयरनेस भी थोड़ा इस इशू है। नॉर्मली मैंने जो स्टार्टअप को देखा है, दे गो टू प्राइवेट इक्विटी, हाँ, पीवीसी। पी में जाते हैं, वहां फंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं, वो बैंकों को बहुत कम अप्रोच करते हैं। लाइक बट जो एमएसएमईज हैं टीयर 2-3 शहरों से, वहां पर जो पेनिट्रेशन है नॉलेज का, वो लाइक उतना उतना नहीं है, उनको नॉलेज की थोड़ी सी कमी है। तो अवेयरनेस की इशू है, वहां पर अवेयरनेस का इशू है। और जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनकी उनकी नॉलेज नहीं है। ओके सर, जो अभी हम अगर इंडिया में देखें तो किस तरह के बिजनेसेस हैं, किस तरह के एमएसएमईज हैं लाइक जो बूस्ट कर रहे हैं? वो फिनटेक है, हेल्थ टेक है, एडटेक है, सस्टेनेबल बिजनेसेस हैं, लाइक आप किस तरह से देखते हैं? अभी देखिए, बहुत सारे डिजिटल पेमेंट आ रहे हैं, ई कॉमर्स आ रहे हैं, देन बहुत सारे एग्रीगेटर्स आ रहे हैं, एंड बहुत सारे नए जो इंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी को, अभी अपॉर्चुनिटी क्या है कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड हो गई लेकिन उनका इंटीग्रेशन नहीं है। तो एपीआई बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें डिजिटाइज हो गई हैं लेकिन उनको लिवरेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अब सारे नए जो इंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड, ये इमर्जिंग ट्रेंड है। लाइक ये सब टेक्नोलॉजी का खेल है, जिसने टेक्नोलॉजी को जितने अच्छी तरीके से लेवरेज किया। लेवरेज कर दिया, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले क्या होता था कि बैंक्स वर स्ट्रगलिंग टू गेट द डेटा, ट्रेंड समझ में आए, डेटा समझ में आए, कस्टमर को असेस कर पाए। आज वो डेटा अवेलेबल है अब, लेकिन वो फिर वही बात है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये फिनटेक आ रहे हैं, नए स्टार्टअप आ रहे हैं जो उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड करके हमको दे रहे हैं, जिससे उसमें ज्यादा बैंक उसको लिवरेज कर पा रहे हैं और लोन देने में दे आर सक्सेसफुल टू एक्सटेंड लोन। Right. Okay. So, how is the definition of MSMEs expanding in India today? किस तरीके से हम जो MSMEs है उसका definition बदल रहा है, एंड गवर्नमेंट इसको किस तरीके से बदल रही है? देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया। नाउ ओनली देयर आर टू बेसिस, एक तो टर्नओवर ऑफ द एमएसएमई यूनिट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। जी। तो अगर किसी का टर्नओवर पहले, अभी जो रिवाइज गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर उनका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो वो स्मॉल कहलाएगा। और किसी का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लेस देन 2.5 करोड़ है, वो स्मॉल कहलाएगा जी। और अगर किसी का 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो स्मॉल माइक्रो कहलाएगा वो। और उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में 25 से नीचे है तो दिस विल बी ए स्मॉल। अदरवाइज इफ the turnover is less than 500 but more than 100, it will be medium, and investment in plant and machinery is more than 25 crore but less than 125 crore, it will be medium. So it's a very simplified, and apart from this they should not go into this plant and machinery investment turnover blah blah blah. They simply go and register themselves at URC will classify them accordingly. राइट। अभी इफ यू हैव एनी आइडिया कि लाइक इंडिया में कितने रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं एंड उनसे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है? अभी जो लास्ट था रफली 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई यूनिट्स, और इतने ही
ऐसा एस्टिमेशन है कि इतने ही रफली आर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, दैट इज नॉट येट रजिस्टर्ड। So like around 6.6 crore के हाँ, आस- रफली इट्स ए right. ह्यूज अमाउंट। एंड इससे 100 मिलियन लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही होता है। हाँ, 1 करोड़ लोगों को ये लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर ये। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो भी लोकल एरिया में, स्मॉल स्मॉल प्लेसेस पर, नॉट एट मेट्रोज और बिग सिटीज। जी जी सर, मैं जैसे लाइक मैं बिहार गया हूँ, और जब मैं यहाँ यूपी में भी मैं मेरठ जाता हूँ या जहाँ भी जाता हूँ, तो जो लाइक छोटे छोटे जो जहाँ पर आपको बाहर से पता भी नहीं चलेगा कि अंदर वहाँ प्रॉपर पूरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, लोग काम कर रहे हैं, 40-50 लोग अंदर काम कर रहे हैं। सो प्रॉपर लाइक वो एमएसएमई है, वहां पर वो लोग इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड वहीं पर लाइक एक जो स्टार्टअप आता है, वो उस टेक्नोलॉजी को लाइक उसको वो लोग लेवरेज करके एक बड़ी कंपनी बना देते हैं। बट हाँ, एमएसएमईज लाइक टेक्नोलॉजी को अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं। लाइक टीयर 1 में मे बी वो हो भी रहा है, बट जब हम गांव में जाते हैं, टीयर 2-3 में जाते हैं, बट वहां पर ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो सर उसको उस चीज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए टेक्नोलॉजी, जो पहली बात तो जो अडॉप्शन ऑफ एनी न्यू थिंग्स, बी जी इट टेक्नोलॉजी और एनीथिंग, इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है कि इनको लैक ऑफ अवेयरनेस है कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे लिवरेज कर सकते हैं और इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। जी इसके अलावा दे आर ऑल्सो कंसर्न बिकॉज जो लोग थिन मार्जिन पे काम करते हैं, तो कॉस्टिंग भी बहुत बड़ा उनका इशू है कि कॉस्टिंग कितनी आई। उनको उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए स्किल ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो शायद उस छोटी जगह पे उनको नहीं मिल पाएगा। जी एंड उनको साइबर सिक्योरिटी कंसर्न भी रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो इन चीजों को रोक, टू टू रिमूव दिस कंस्ट्रेंट, गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वेरियस स्कीम्स। वो लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है, वो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। दे वांट टू प्रमोट दिस एमएसएमई एंड सो दैट दे कैन कम्पीट ग्लोबली। और इसके अलावा वो उनको टेक्नो ट्रेनिंग देती है for various organizations के थ्रू इन कोलैबोरेशन विद सिडबी और अदर्स इंडस्ट्रीज फोरम्स। तो उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट देती है जिससे वो इसको यूज करें। अब धीरे धीरे इसको अडॉप्शन शुरू हुआ है, लेकिन स्पीड थोड़ी स्लो। और सर जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है TREDS प्लेटफॉर्म, सो उसका क्या रोल है, और क्या उसको अभी लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? हाँ, अभी पहले उतना उसका यूज नहीं हो रहा था, लेकिन अभी उसका बहुत यूज होने लग गया है, स्पेशली जब से इन्होंने उसमें टर्नओवर की लिमिट 500 से 250 किया है। जी उसकी वजह से इसका बहुत अडॉप्शन हो गया है। अब लोग अपने बिल वहां पर डिस्काउंट करा पा रहे हैं। सारे बैंक अब इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि जब बहुत इजी है, फास्ट है जी एंड स्मूथ है। तो इसका बहुत, अब रिसेंटली मैंने 2-3 साल, इधर लास्ट 2-3 ईयर्स में इसका अडॉप्शन बहुत ज्यादा देखा है। इनका ग्रोथ भी अब फिनोमिनल है। इधर लास्ट 2-3 ईयर्स डिस्काउंटिंग हैज इंक्रीज अ लॉट। ओके, सो लाइक बेसिकली मतलब अभी एमएसएमईज के पास एक TREDS भी अच्छा ऑप्शन है जहां पर वो पैसे ले सकते हैं। हाँ, वो है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है, को लेंडिंग है, ऑनलाइन लेंडिंग है, आईबीपीसी है, बहुत कुछ है। और एमएसएमई के पास अभी बहुत, अभी बस उनको है कि कॉम्पिटिटिव रहे, और थोड़ा सा एक चीज और है कि स्पेशली जो लैंडर है उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा रहे और एक म्यूचुअल ट्रस्ट बने, जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट इज देयर। तो बहुत दे हेजिटेट टू शेयर देयर थिंग्स विद देम। ओके, एंड सर लाइक जितने भी एमएसएमई हैं, एसएमई हैं, सो उनका मतलब हर एक प्रमोटर फाउंडर का एक ड्रीम होता है, एम होता है कि उसको एसएमई आईपीओ में जाना है। तो अभी लाइक क्या सीन है एसएमई आईपीओ का? एसएमई आईपीओ का अभी अभी बिकॉज ऑफ रिसेंट सम चेंजेस काफी कुछ सही हो गया है। एंड अगेन मैं बोलूंगा, वैल्यूएशन गेम में नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छा फोरम है। आपको कंप्लायंसेस को इंश्योर करना है, एंड इट्स अ वेरी गुड फोरम टू रेज फंड, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। एंड लाइक जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं वो थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड उसमें, तो उसको कैसे वो बेटर कर सकते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी है। यही 2-3 चीजें हैं जिन पर एमएसएमई ध्यान नहीं देता। एक तो स्किल्ड मैन पावर पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान नहीं देते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो एक या दो ही सप्लायर और बायर पे डिपेंड।
उनको इन चीजों से आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो एक या दो बायर और सप्लायर पे डिपेंडेंट रहेंगे कभी भी कॉलेप्स कर सकते, और कॉलेप्स नहीं भी करेंगे तो वो उनका मार्जिन वो बायर और सप्लायर स्क्वीज करता है। या फिर तो बेटर ऑप्शंस ही नहीं होंगे उनके पास। नहीं तो उनको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना चाहिए, और बायर्स और सेलर्स का नंबर बढ़ाना चाहिए। उनके पास रहते हैं, और नहीं तो कभी कभी मैंने अक्सर देखा कि कोई बड़ा यूनिट अगर कॉलेप्स करता है तो बहुत सारे एमएसएमई यूनिट उसमें कॉलेप्स होते हैं। तो हम लोगों को अक्सर ये हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि यू डाइवर्सिफाइड योर बायर एंड सेलर्स, अदरवाइज दे विल कीप नो इनका मार्जिन वो लेते रहते हैं। सो अभी लाइक अगर हम आने वाले 4 से 5 सालों की बात करें तो ये जो डिजिटल अडॉप्शन है वो कितना बढ़ेगा, एंड जो कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का जीडीपी में उसका क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए अभी एवरी इज ए बिग बज, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमई, राइट। क्योंकि और यही लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ये देयर विल बी ए फिनोमिनल ग्रोथ इन एमएसएमई, and it is in the mutual interest of everyone or all stakeholder to promote MSME। राइट। जितनी भी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर ग्रोथ ही इसलिए हुआ कि उन्होंने एमएसएमई यूनिट को प्रमोट किया। तो यहाँ पर भी फिनोमिनल ग्रोथ होगी एमएसएमई यूनिट में, स्पेशली जब दो तीन चीजें जो गवर्नमेंट शुरू कर रही है, यूआरसी, यूएपी, यूएलआई, इसकी वजह से बहुत चेंजेस होंगे। ओके सर, सो लास्टली लाइक अभी जितने भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड जितने भी लाइक स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, एमएसएमई प्रमोटर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि उनको वैल्यूएशन गेम में नहीं जाना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे, एक सब्सटेंशियल ग्रोथ होगी। वी शुड नॉट एस्पायर ग्रोइंग 50%, 100%, 200%, इंस्टेड ऑफ 15-20% ग्रोथ वुड बी फाइन। ग्रोथ को मैनेज भी कर पाएंगे एंड वैल्यूएशन गेम में ना जाए। अगर उनका लॉन्ग टर्म विजन रहेगा तो वो ग्रो करेंगे और कंट्री ग्रो। बट अभी लाइक जो हम स्टार्टअप्स को देखते हैं कि वैल्यूएशन गेम इतना ज्यादा हाई है, तो उसमें आप देखो फिर क्या है कि बहुत सारे लोग, काफी लोग सक्सेस होते हैं लेकिन फेलियर भी रेट ज्यादा है। राइट। एंड लाइक अकॉर्डिंग टू सम डेटा 95% जो स्टार्टअप्स में फेल ही हो जाते हैं। फेल होते हैं फिर, और उनका उसको कोई उनके बारे में कोई जानता नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट कि उससे उनको ज्यादा ना वो लोग डिसअपॉइंट होते हैं, डिस्करेज होते हैं। तो वैल्यूएशन गेम में न जाए तो बेटर हो। ओके सर, अभी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो लाइक एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट उसमें काम कर रही है, बैंक्स काम कर रहे हैं, एंड जो डिजिटल अडॉप्शन है सो उस पे भी इंक्रीज हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, एंड आई होप कि अभी हमें जितने भी लोग देख रहे हैं इतना डिटेल में आपने बताया कि किस तरीके से एमएसएमई ग्रो कर सकते हैं, एंड किस तरीके से उनको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। लाइक फर्स्ट ये है कि आपको आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ठीक रखनी है, एंड सेकंड आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, एंड उसके बाद विदाउट कोलेटरल भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक सीजीटीएमएससी और सिडबी फंडिंग ऑप्शन प्लान, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। सो आप उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं, एंड इस कॉन्वर्सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जितना भी हो सकता है। आप इस अपने फाउंडर दोस्तों के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ और प्रमोटर्स के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।